جی دوستو، تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج کی کلاس۔ پہلے ہم نے سیکھا تھا سمپل میتھڈ، آپ کو سکھایا گیا تھا ٹیکنیکل انالیسس کی مد میں، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو لیسن ہے وہ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی مد میں ہے۔ اس میں دو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز آپ جب ان کے بارے میں سیکھ جائیں گے یا سمجھ جائیں گے تو آپ ان کو کس طرح یوز کر کے آپ ٹریڈ کرتے ہوئے پرافٹ کما سکتے ہیں۔ جب تک آپ ان ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے تب تک آپ ان کو ٹھیک سے یوز بھی نہیں کر پاتے۔ اب یہ ٹیکنیکل جو انڈیکیٹرز ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کرپٹو مارکیٹ میں یوز کریں، ٹھیک ہے، یہ فاریکس مارکیٹ میں بھی یوز کیے جاتے ہیں۔ سب میں چارٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پوزیشن پر آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھائیں آج کے لیسن میں کہ ہاؤ ٹو یوز ٹیکنیکل انڈیکیٹرز۔ فرسٹ ٹیکنیکل انڈیکیٹر از RSI۔ واٹ از RSI؟ RSI کا جو فل فارم ہے وہ ہے دا ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس، RSI ڈیولپڈ بائی جے ویلس والڈر، ٹھیک ہے۔ is the momentum oscillator that measures the speed and change of price movements۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سادہ انگلش یا آسان انگلش آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی میں تھوڑا سا ترجمہ کر لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ جو آسکیلیٹر ہے یہ ناپتا ہے کس کو؟ ایک تیزی کو۔ وہ تیزی کیا ہے؟ وہ تیزی ہے پرائس میں جو چینج آ رہا ہے، یعنی اوپر جا رہی ہے یا پرائس نیچے آ رہی ہے۔ اس میں جس طرح کا چینج آ رہا ہے اس کو جو ناپتا ہے، میئر کرتا ہے اس مومنٹم کو، وہ ہے RSI، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو RSI ہے، دا RSI آسکیلیٹر بٹوین 0 اینڈ 100۔ اب اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ 0 سے 100 تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریڈیشنلی روایتی طور پر دا RSI از کنسیڈرڈ اوور باٹ، ٹھیک ہے، اوور باٹ کنسیڈر وین ابو 70۔ اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب یہ RSI ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 70 میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے، 70 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کہاں ہے 70 وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے دکھائی دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 70 ہے، یہاں سے جو اوپر گیا یہ لائن اوپر گئی ہے۔ اب یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ اوور باٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اوور باٹ ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اینڈ اوور سولڈ وہین بلو 30۔ اب یہ 30 ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ 30 ہے، ٹھیک ہے۔ یہی لائن جب اس 30 سے نیچے جائے گی تو یہ ایک اشارہ کرتی ہے کہ اب یہ اوور سالٹ ہو گئے۔ اب اوور سالٹ اوور باٹ کا مطلب کیا ہے وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اوور باٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کوائن میں اتنی زیادہ خریداری ہو چکی ہے کہ اب اس میں زیادہ خریداری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، یا لوگوں کے یا ٹریڈرز کے سینٹیمنٹس اب بدل رہے ہیں کہ اب ہم اس میں خریداری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوور سالٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کوائن کو اتنا لوگوں نے بیچا ہے، اتنا لوگوں کو بیچا ہے کہ یہ اب اپنی اس باٹم والی پوزیشن پر آ گیا ہے کہ جہاں پر خریداروں کی دلچسپی اب بڑھے گی، ٹھیک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اوور سالٹ۔ اب یہ RSI کا جو چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسے
जो है ना ट्रेंड इसमें बदल रहा होता है। आप कैसे इसमें से अब देखिए ना, सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय looking for divergence and failure swings. RSI can also be used to identify the general trend. यानी ऑल ओवर जो ट्रेंड चल रहा है उसमें भी आप RSI के थ्रू उसको आप फाइंड कर सकते हैं और एक सिग्नल भी अपने लिए जनरेट कर सकते हैं इसी RSI को यूज करते हुए। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये है RSI, इसका क्या फायदा है। अब जब भी अब आप एंट्री लेंगे तो अब आपको पता चलेगा, अब आपको समझ आएगी कि अब हमें RSI के कौन से मोमेंटम या कौन से स्पीड के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है ना। जब भी आपने स्पॉट में एंट्री लेनी है तो आप ज़रूर देखिएगा कि RSI अंडर 30 है कि नहीं है, ये आप ज़रूर देखिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, प्लस में क्या कहते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 वीक टाइम फ्रेम में, 1 मंथ टाइम फ्रेम में। ये जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से आप लोगों को ये तरीका एक बताया था कि जब भी आप ट्रेड करने जाएं तो किसी भी कॉइन का पहले मुकम्मल ग्राफ ज़रूर खोला करें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऑल ओवर जो जनरल ट्रेंड चल रहा है वो किस किस्म का ट्रेंड चल रहा है, वो अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, दोनों में मैनिपुलेशन ज़रूर होती है, लेकिन जब आप मुकम्मल ग्राफ खोलते हैं किसी भी कॉइन का तो उसमें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इस वक्त अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बाकी ये याद रखिए कि जैसे जैसे आप कम ग्राफ खोलते जाएंगे, जैसे वीकली, वन डे के बाद जैसे ही 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आप देखेंगे कि उसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। कभी किस तरह कैंडल्स बन रही होंगी, कैंडल्स का पैटर्न बन रहा होगा, कभी किस तरह बन रहा होगा, लेकिन जो मुकम्मल ग्राफ होता है उसमें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ट्रेंड कौन सा है। जब वो आपके जहन में पहले से फिट पड़ जाता है कि ये अब ट्रेंड है, तो अब छोटे से टाइम फ्रेम में कितनी भी मैनिपुलेशन हो, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इस कॉइन में आगे चलना ही चलना है, उसकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है, तो आप अच्छे से सब्र कर पाते हो और होल्ड भी कर पाते हो, ठीक है। तो आज RSI को डिफाइन करने का और इसको यूज़ करने का जो आप लोगों को तरीका शेयर करना था आपके साथ, सिखाना था आपको, वो तो सिखा चुके। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं कि MACD, ठीक है। MACD आपने नाम सुना होगा, ये भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है। उसको आपने कैसे यूज करना है, अब इस तरफ हम चलते हैं। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। अब ये मैंने लगा लिया, अब आ गए हम, ठीक है। अब ये देखें, हाँ, इसको सिंपली बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये दो लाइनें होती हैं, दो लकीरें होती हैं, दो लाइनें होती हैं मूविंग एवरेजेस की, ठीक है। जिसमें कोई बाइंग मूविंग एवरेज बनती है तो कोई सेलिंग मूविंग एवरेज बनती है, लेकिन बनती दोनों हैं। जब दोनों यकजा होती हैं, जब दोनों यकजा होती हैं तो हम फाइंड कर पाते हैं कि अब जो मूविंग एवरेज दोनों के इत्तेहाद से बनी है वो क्या है, वो बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है। अब ये है, ये दोनों दो लाइनें आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद है। मजीद मैं इनको थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। एक मिनट, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। 1 डे टाइम फ्रेम खोलते हैं पहले,
देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में क्या पोजीशन है। हाँ ये फिर भी ठीक है, जहाँ से आपको और क्लियर समझ में आ जाए। अब ये है वन डे टाइम फ्रेम। ठीक। अब ये है, हम निकाल रहे हैं इसका ये। हाँ, अब मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। फिर भी इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। इरेजर। ठीक है। ड्रा हो गया। हाँ, शायद अब कुछ ना कुछ आप लोगों को क्लियर नजर आए। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों को क्लियर नजर आए। ये थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से कुछ समझ भी आए। ये लाइन देखिए। ठीक। ठीक। अब आप समझ जाएंगे आसानी से। अब ये वन डे टाइम फ्रेम मैंने बीटीसी का खोला हुआ है। अब देखिए ये दो लाइनें पहले से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नीचे आ रही थी। ठीक है। अब नीचे आते आते इसने ट्रेंड रिवर्स किया और दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और एक अप ट्रेंड बनाया। जैसे ही इन्होंने क्रॉस किया है एक दूसरे को, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये मैंने निशान आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो इसको क्रॉस करने में ये लगातार इतने दिन ये अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में रहते रहते अब यहाँ पर ये है वो जगह, फिर से इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को काटा है या क्रॉस किया है। तो फिर नीचे की तरफ अब लगातार कुछ दिन ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये है एमएससीडी। इसी एमएससीडी को यूज करते हुए आप भी समझ सकते हैं कि कब किस वक्त हमने लेनी है एंट्री। ये आप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पर जैसे ही डाउन ट्रेंड में एमएससीडी आई है तो ये नीचे जा रहा है। ये आप देखें, एक मिनट मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताता जाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, समझ आए। अब ये देखिए यहां तक ऊपर गया कॉइन। ठीक है, ये देखें अब जैसे ही एमएससीडी ने यहां से एक दूसरे को क्रॉस किया तो ये यहां तक नीचे आया। ठीक है, यहाँ तक नीचे आया, फिर से यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पंप किया। यहाँ एमएससीडी की लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया, फिर से पंप किया और यहाँ तक चला आया। ये अब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता। इसको आप एक दफा ही नहीं समझ सकते, इसको समझने के लिए आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये आप याद रखिएगा, बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब ये मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। ठीक है, अरे यार कहाँ गया। कहाँ गया। चार्ट इशू हो गया है। चले वन डे टाइम फ्रेम को देख लेते हैं।
चलो मैं बाद में ही सेटिंग कर लूँगा, शायद मैंने कुछ आगे निकाल लिया है, हाँ मेरी गलती थी ना। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, ये देखें। अब ये देखें, यहाँ से इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, ठीक है। कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है। अब इसके बाद क्या हुआ है, आप नतीजा खुद देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप खुद देख रहे हैं। यहाँ से क्रॉस किया एमएसीडी ने, ठीक है। अब ट्रेंड का फिर से छोटे से टाइम फ्रेम में इशारा दिया, और क्या हुआ, यहाँ से जो पंप किया लिया इसने, यहाँ तक लिया। अच्छा, ये जो होता है ये 100% नहीं होता, टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई भी हो, ये 100% नहीं होता, ये आमतौर पर 90% काम करता है। उसकी वजह ये है कि 10% इसीलिए हम कम बताते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी न्यूज़ जो है ना मार्केट पर इफेक्ट करती है, फिर ये टेक्निकल इंडिकेटर्स काम करना बंद कर देते हैं, यूँ समझें कि एक तरह से फेल हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम जब ट्रेड करते हैं तो हमें मनी मैनेजमेंट का फार्मूला अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो फिर मनी मैनेजमेंट करना जानते हैं, प्लान ऑफ ट्रेड बनाना जानते हैं, तो फिर वो किसी भी सूरत हाल में अपनी ट्रेड को कामयाब ज़रूर बना देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मज़ीद क्या क्या आपने सीखना है, समझना है, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के बारे में पूरा कोर्स अपलोड करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।